دیکھیں، شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب دیکھیں، آپ کے سامنے پڑی ہے، یہ ہاتھ میں لے، پہلا صفحہ نکالیں۔ یہ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب، پہلے صفحے سے شروع کریں گے۔ خداوند تمہارے ساتھ ہو، ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے، تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح کے الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سنا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی معنی یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئیں، کچھ دیر خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ سب مل کر کہیں، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے، ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن راستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر، اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والا اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جب اپنے بہن بھائیوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب سے گیت نمبر 294، جب سے پیارا یسوع آیا میرا جیون بدل گیا۔ Yeah.
को चमका यीशु मेरा, इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। साजों के लिए, इन साजों के लिए, आप सबके लिए आप लोग ज़रूर बताया करें अगर आपको साजों की आवाज़ ज़्यादा आ रही हो। मुझे आती है जब मैं आपको कह देता हूँ। अगर आपको साफ़ आवाज़ आ रही है फिर आप ज़रूर बताया करें। हम खुदा का शुक्र अदा करें कि साज़ो आवाज़ के साथ मिलकर जब हम एक जान एक होकर खुदा की तज़ीम करते हैं, सताइश करते हैं, तो खुदा मेरी और आपकी हमदो सना को अपने ज़रूर कबूल फरमाता है। गुज़रे सारे वक्त के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख, बीमारियाँ मेरी और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब आपने इनको साइड पर रख देना है और आज शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ना है। हम दुआ मांगेंगे। हम मिसेस चौहान के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पिछले दिनों बीमार थी, इस्लामाबाद में थी, खुदा उनके घर में हैं। समीना बरकत के लिए और बड़े लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम दुआ के इस बड़े पावरफुल हथियार के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो खुदा ने मुझे और आपको दिया। कुछ लोग हमारे दूसरे शहरों में गए, सलामती के साथ वापस लौटे हैं। सफ़र में खुदा ने उनकी मदद की, रहनुमाई की। जो हमारे बच्चे बैरून मुल्क हैं, जो ख़ानदान बाहर हैं, हम उनके लिए ख़ास दुआ करें। और ख़ास तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद में आज से रास्ते बंद हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे मुल्क में। दुआ करें कि जंगबंदी परमानेंट हो जाए ताकि हालात ठीक हो, महंगाई कम हो। और हमारा ये ईमान है कि खुदा ने चाहा तो ये एक दो दिन में ये मसला हल हो जाएगा। इसलिए ख़वातीन में से कोई भी ख़तून दुआ में रहनुमाई करें, शुक्रगुजारी करनी है। आज़ादी से करें दुआ, लेकिन छोटी दुआ करें। वक़्त के लिए, इस घड़ी के लिए तेरा शुक्र करते प्यारे खुदावंद खुदा, तूने हमें भारी फजल बख्शा। हम तेरे सुंदर कदमों में झुकें, तुझे सीधा करें। तू सारे सजदों के लायक है, तू सारी बुजुर्गी के लायक है प्यारे खुदावंद खुदा। जितनी जाने तेरे आगे सरनगो हैं प्यारे खुदावंद खुदा, एक एक को प्यारे खुदावंद छू लेना, एक एक को बड़ी बरकत देना प्यारे खुदावंद खुदा। अपने अच्छे खादम के लिए प्यारे खुदावंद खुदा दुआ करती, सर से लेके पाँव के तलवे तक तेरे खून में छुपा देती प्यारे खुदावंद खुदा। तेरा शुक्र करती प्यारे खुदावंद खुदा, जब वो बोले वो ना बोले, उसमें तू होकर बोलना प्यारे खुदावंद खुदा। जो कुछ मैंने मांगा मसीह के नाम से मांगा और पाया, आमीन। हम शालकुल कन्वेंशन गीतों की किताब में से ज़बूर नंबर 90 गाएंगे। बड़े अच्छे अल्फाज हैं इस गीत के, पहले पढ़ लें। ये ज़बूर ज़बरदस्त गीत ज़बूर है मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए। साड़ी बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा। 90 ज़बूर ज़रा निकालिए, ठीक है। बदकारी रखी है सारी अपने तू अगे खुदा। सभी से गए। साड़ी बदकारी रखी है सारी
اور آنے والے وقت کے لیے خاص دعا مانگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ حالات کیسے ہیں ہمارے اپنے شہر میں۔ لاہور میں گزرے 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ حادثے ہوئے، نوجوانوں سے بھی، آپ سب سے بھی کہنا چاہتا ہوں محتاط رہیے۔ مختلف طریقے، بہت برے طریقوں کے ساتھ چلتے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، حادثات ہو رہے ہیں۔ ہمارے اپنے شہر لاہور میں بہت زیادہ حادثے ہوئے کل، میں جب سنتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں۔ اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں دعا مانگیں تاکہ خداوند ہمارے ملک پر رحم کرے۔ آنے والے وقت میں بھی خدا میری اور آپ کی حفاظت کرے، کیونکہ جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہاں حالات برے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ناانصافی بہت ہے، صرف عدالتوں میں نہیں، گھروں میں بھی ناانصافی ہے، اداروں میں بھی ناانصافی ہے، شہر میں بھی، محلوں میں، برادری میں، خاندانوں میں۔ سوائے ہم دعا مانگیں کہ خداوند ہم سب کو عقل، دانش اور فہم عطا فرمائے، اس سب دو تعریف کو خداوند اپنے حضور قبول فرمائے۔ دعا کر سکتا ہے کوئی بھی، اونچی آواز میں دعا کیجئے، آپ کوئی بھی کر سکتا ہے، آزادی ہے۔ زندہ جلالی مہربان آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں پیارے خداوند آج کے دن کے لیے، اس مبارک لمحہ کے لیے۔ شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خداوند نعمتوں، برکتوں کے لیے، تمام بخششوں کے لیے باپ آسمانی، اور یک دل یک جان ہو کے ایک کلیسیا کے طور پہ پیارے خداوند تیری پاک حضوری میں، تیرے پاک تخت کے قریب آتے ہیں، اور باپ آسمانی اپنی شکر گزاریاں اور اپنی منتیں سب تیری حضوری میں لے کر آتے ہیں۔ پیارے خداوند جن لوگوں کے نام خاص طور پر لیے گئے جو جسمانی طور پہ کمزور ہیں، ان پر تیرے پاک روح کا فضل چاہتے ہیں۔ میرے خداوند تو شافی خدا ہے، ان کو شفا بخش، زندگی صحت تندرستی دے۔ میرے خداوند ملکی حالات اور شہر کے حالات تیرے سامنے ہیں، اپنی درخواست کرتے ہیں کہ میرے خداوند ہم تیرے پاک روح کا فضل چاہتے ہیں ان تمام حالات پہ۔ باپ آسمانی ہمیں توفیق دے کہ ہم دانش مندی سے اپنی راہ کو دیکھیں اور تیرے فضل میں آگے بڑھتے جائیں۔ آج کی ساری عبادت کے لیے پیارے خداوند تیرے شکر گزار ہیں، اور ساری پرستش کے لیے، ان سازوں کے لیے، آوازوں کے لیے پیارے خداوند یہ ہماری اپنی تشہیر کے لیے نہیں، اپنی مشہوری کے لیے نہیں، بلکہ تیرے جلال کے لیے استعمال ہوں۔ سارے کلام کے لیے پیارے خداوند دعا مانگتے ہیں کہ وہ 100 گنا اور اس سے بڑھ کے پھل لائے، ہماری زندگیوں میں تبدیلی کا باعث ہو۔ پیارے خداوند ہماری شکر گزاریاں اور دعائیں اور منتیں تیری حضوری میں لے کے آتے ہیں، ان کو قبول کر، مانگتے اور پا لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں، آمین۔ رسولوں کے اعمال سے ہے، رسولوں کے اعمال، صفحہ نمبر 109، دوسرا باب، 36ویں آیت سے 41ویں آیت۔ بھائی داؤد لال آپ پڑھیں گے، پچھلی دفعہ آپ آئے تھے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیجیے حوالہ۔ دوسرا باب 36ویں آیت سے 41ویں آیت، رسولوں کے اعمال دوسرا باب 36ویں آیت سے 41ویں آیت، صفحہ نمبر 109۔ آج کا دوسرا ورد پہلا پطرس پہلا باب 17 آیت سے 23ویں آیت تک، صفحہ نمبر 228 228، پہلا پطرس پہلا باب 17 سے 23ویں آیت۔ مسٹر بلبل جمیل اس پیسج کی تلاوت کریں گے، پھر ہمیں گیت گائیں گے۔ گیت نمبر 356 356، شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے۔ پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے، صفحہ نمبر 81 مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب 13ویں آیت سے 25ویں آیت۔ پادری سشیل یہ پیسج ہمارے لیے پڑھیں گے، صفحہ نمبر 81 مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 24واں باب 13ویں آیت سے 25ویں آیت۔ میرے ہاتھ میں شادی کتاب وہ چیز ہے جو ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہے۔
बच्चों से, नौजवानों से ख़ास तौर पे दरख्वास्त की जाती है कि वो किताबें पढ़ा करें। ज़िंदगियाँ भी तब्दील होंगी, इल्म में भी इजाफ़ा होगा। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है आप सबसे। रफ़ाक़त ख़वातीन की इबादत हर जुमेरात की शाम, तो जिनके निकाह के लिए पादी सुशील आज वहाँ जा रहे हैं, हम दुआ मांगते हैं ऐसे इदारों के लिए जो ये काम करते हैं। गरीब लोगों की बेटियों की शादियाँ करते हैं, उनको जहेज़ मुहैया करते हैं और उनके लिए सारी चीज़ें वहाँ पे अरेंज करते हैं। ऐसे इदारों के लिए हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और दुआ वो हैं कि हमारे मुल्क में लोग एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करें। मेरे पास रात को चूँकि मैं आपके लिए तैयारी करके सोता हूँ, मामूली जो तकरार है, तकरार का मतलब आता है बहस, तलख़ कलामी, मैं भी कर लेता हूँ। मैं आप सबसे कहना चाह रहा हूँ, नौजवानों को ख़ास तौर पे, बच्चों ज़रा गौर से सुन लें। मामूली तलख़ कलामी से लाहौर में कल एक नौजवान को मार दिया गया। एक नौजवान की मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल चला रहा था तेज़ी के साथ, खंबे पे जाकर लग गया, मर गया। बहुत हादसे हैं, मैंने यह अपनी डायरी में लिखे हैं। मैं अपने मैसेज में तलख़ कलामी के बारे में, बहस के बारे में चंद बातें ज़रूर कहूँगा। आपने आज गौर से सुननी है ताकि आप जैसी भी हालत में हैं, ख़ास बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, तकरार से, बहस से, तलख़ कलामी से आजकल ग्रेज़ करें। महंगाई की वजह से लोग बड़े तंग हैं, बिल देने की वजह से बड़े तंग हैं, गुस्सा उनकी ज़िंदगी में भरा हुआ है और वो बहुत जल्दी मरने मारने पे तुल जाते हैं। इसलिए आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, आप इन बातों को ज़रूर याद रखें। मैं अपने मैसेज में इनका ज़िक्र करूँगा। मिसेज़ अमानत है, उनकी बेटी की शादी थी। हम ऐसे घरानों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मिसेज़ अमानत, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। जिन ख़ानदानों में शादियाँ हैं उनके लिए दुआएं खैर करते हैं और दुआ करते हैं खुदा उनकी सारी ज़रूरियात को भी अपने इलाही ख़जाने से पूरा करे और आज का दिन भी हमारे लिए बरकत और खुशी का सबब ठहरे। क्योंकि जो मौजूदा हालात हैं, आप जानते हैं कि मुल्की कानून, मुल्क में जो फ़ैसले हो रहे हैं तकलीफ़ दे भी हैं हमारे लिए, लेकिन उनका तदारक करने के लिए मुझे और आपको मुतहद होने की ज़रूरत है। इसलिए बराए मेहरबानी इन सारी बातों को याद रखा करें जो मैं आपके साथ करता हूँ। ये आपकी बेहतरी के लिए, आपके बच्चों की बेहतरी के लिए है। सो मेरी ये दरख्वास्त है कि हम दुआ मांगें ऐसे हालात के लिए। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत और रसूलों के अमाल का हवाला और पतरस का हवाला सुनेंगे। आए हम दुआ मांगें। छोटी दुआ करनी है। जिसने भी तू जो हमारी दुआओं और इल्तिजाम पर कान धरता है, हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। आज सुबह बड़ी आजिज़ी, सारी हलीमी और फ़रोतनी के साथ तेरे सामने झुकते तुझे सजदा तज़ीम पेश करते हैं। तो हमारा ऐसा मुहाफ़िज़ है जो ना कभी सोता ना ऊँघता है, बल्कि जब हम अपनी इल्तिजाएँ मना जाते हैं, दरख्वास्तें तेरे मज़बा पर रखते हैं, तो हमारी होंठों की इस कुर्बानी को अपने हुज़ूर मकबूल ठहराना। इस वक्त तेरे बंदा ने जो दरख्वास्तें तेरे सामने रखी हैं, मौजूदा हालात को तेरे सामने रखा है, तमाम उन नौजवानों को भी अक्ल, दनाई और फ़हम अता कर, उनके वालिदैन को ये अक्ल और दनाई दे ताकि वो अपने बच्चों की तरबियत तेरे कलाम के मुताबिक कर सके। और हमारे अंदर जो तलखी है, जो गुस्सा है, जब हम तेरे बेटे यीशु मसीह पर ईमान और भरोसा तवक्कुल रखते हैं, तो ये सारी बुराइयां हमारे अंदर से जाती रहें। हम तेरे बेटे यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए अपने तमाम गुनाहों पर, अपनी तमाम बुराइयों पर खुदावंद गालिब आ सकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला ठहर सकें। मौजूदा हालात को अपने हाथ में ले, मुल्की हालात को अपने हाथ में ले और खुदावंद ख़ास कर जो कानून तेरे बंदे ही बनाते हैं इस दुनिया में रहते हुए, जो दूसरे इंसानों के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो उनके लिए नुकसान का और तकलीफ़ का बायस बनते हैं। तो ऐसे लोगों को अक्ल, दनाई और फ़हम अता करना ताकि वो ऐसे कानून बनाएं जिससे तेरे लोग जो हैं उनके लिए उनमें भला हो, उनके लिए उसमें राहत हो, तसल्ली हो, ताकि तेरे लोग तेरे नाम का शुक्र अदा करें। पूरी कलीसिया पर तेरी बरकत जाते हैं। जितने लोग तेरी हुजूरी में सरनगू हैं, इन तमाम की मनाजातों को, दरख्वास्तों को अपने हुजूर मकबूल ठहरा। आज के कलाम के लिए हम सबको तैयार कर, हमारी मिन्नत, शुक्रगुजारी और दुआ को सुन। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन।
बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा कि आए भाइयों हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूहुल कुद्स इनाम में पाओगे। इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जिता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। कलाम के पढ़े और समझ जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आज का खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, और जब कि तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक के काम के मुआफिक बग़ैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का ज़माना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फ़ानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेश कीमत खून से। उसका इल्म तो बनाए आलम से पेशतर से था, मगर ज़हूर आखिर ज़माना में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। चूँकि तुमने हक़ की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई, इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो, क्योंकि तुम फ़ानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो ज़िंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। खुदावंद का पाक कलाम हम सब के लिए पढ़ा और सुना जाना वैसे बरकत साबित हो। आमीन आमीन। शोले शोले शोले
खुदावन जिंदा खुदावन याद के सोए याद के सोए शोले 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 याद के शोले 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 याद और पाकलाम में लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम अमाउस है। वो यरूशलेम से तकरीबन 7 मील के फासले पर है, और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थी आपस में बातचीत करते जाते थे। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने, जिसका नाम क्लियोपस था, जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है, जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा, जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। और सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए, और उसे मसलूब किया। लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मुखलिसी यही देगा, और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज 3रा दिन हो गया, और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया है, जो सवेरे ही कब्र पर गई थी, और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा, वो ज़िंदा है। और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर गए, और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उसने उनसे कहा, आए नादानों और नबियों की सब बातों के मानते हैं, आए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त का दो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन आमीन। इशारे बात ईमान का इकरार करेंगे और कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतुस पलतुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और 3रे दिन पाक नविश्तों के बावजूद जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म न होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तश ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। सब बोले, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, हम बड़ी आजिज़ी और इनकी सारी के साथ बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ तेरे आगे झुककर तुझसे इल्तिजा करते हैं। आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस बने। अपने खादिम की मुँह में अपना कलाम दे। सेंट जॉन चर्च की सारी कलीसिया के लिए, जो लोग बैरून मुल्क हैं, उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जाती है, हम उन सब के लिए दुआएं खैर करते हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त हम मिस्टर मिसेस गुड्डू हकीम के लिए, मिस्टर मिसेस अर्नेस्ट जॉन के लिए, अपनी बहन अंजम जावेद के लिए, नौशीन इमैनुअल के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, समीना बरकत के लिए,
اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کمزوری کی حالت میں ہیں بے نعیم برکت کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. ان سب پر رحم کر, صحت و تندرستی عطا فرما. ہم تمام منسٹریز کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, نور منسٹری کے لیے بھی, اور اپنا ہاتھ بڑھا اور ہم سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر. آج کا کلام تیرے لوگوں کے لیے برکت, خوشی, راحت اور تسلی کا سبب ٹھہرے. دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں. جماعت بیٹھ جائے. خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. میرے پاس ایک پرچی آئی تھی ساجدہ نور کی, وہ اگر یہاں پہ ہیں تو آ جائیں. ہمیں اچھا لگے گا کہ وہ آئیں, اور خاص طور پہ نور منسٹری کے بارے میں چند باتیں کریں گی. اور ہمارے بالکل قریب یہ دلکشا گارڈن میں انہوں نے گیسٹ ہاؤس بھی بنایا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اس گیسٹ ہاؤس کے وسیلے سے خدا انہیں برکتیں دے. یہ اب تو بہت بڑی ہو گئی ہے, مجھ سے بھی بڑی ہو گئی ہے, اس لیے اس پادری سشیل کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا اس بچی نے. یہ ساجدہ, مریم, حمیدہ, یہ ایسی لڑکیاں تھیں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ سب اسکول کی خدمت کی. اور چونکہ میں اس وقت ان سے کافی بڑا تھا تو میں ٹریننگ کر کے آیا تھا سائپرس سے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے بچوں کے لیے, ایسے نوجوان بیٹیوں کے لیے جو دوسروں کی فکر کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑنا ہے کہ آپ خدمت میں بہت بہت سلام. جو آپ نے ورڈز کہے ہیں مجھے اس سے ایک شعر یاد آ گیا کہ اپنے لیے تو جیتے ہیں, آگے کیا ہے, بولے بولے سب کو یاد ہے. سب ہی اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اور ان کے کام آنا. ٹھیک ہے, تو خداوند نے مجھے, میں کہوں گی اپنے لیے کہ گھورے سے اٹھا کر شہزادے شہزادیوں میں بٹھایا. تو خداوند کا شکر کرتی ہوں. ضلع اوکاڑا کے ایک گاؤں میں میری پیدائش ہوئی, پھر تعلیم حاصل کی, اور پھر اس کے بعد جو ہے لاہور آنا پڑا تاکہ یونیورسٹی یہاں پر مکمل کریں. اور پھر ایجوکیشن سے خدا نے میری ڈائریکشن کو چینج کیا کہ میں جو ہے فل ٹائم خدمت میں آؤں. تو جب میں ابھی کالج میں داخل ہوئی تھی, جب سے جو پاسٹر صاحب اور باجی سے ملاقات ہے, اور میں ان کو ہمیشہ بھائی کہتی ہوں, مجھے بہت پسند ہے. کبھی یہ مجھے پادری صاحب نہیں کہتے ہیں, بھائی کہتے ہیں آپ کو. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ واقعی حقیقت میں بھائی ہیں, کیونکہ ہمیشہ انکریجمنٹ ملی ہے, پیار ملا ہے, محبت ملی ہے, حوصلہ افزائی ملی ہے. تو میں خدا نے مجھے موقع دیا کہ میں UK جا سکوں تاکہ میں اپنی بیچلرز ڈگری وہاں سے کر سکوں, جو ببلیکل اور اپلائیڈ تھیولوجی اور مینجمنٹ میں تھی. یہ اصل امتحان شروع ہو گیا وہاں پر, کیونکہ بہت بڑا میدان تھا وہاں پر سامنے کہ وہاں پر رہا جائے, نوکریاں, شادی, ہمیشہ کمفرٹیبل رہنا. لیکن خدا نے مجھے بہت چیلنجنگ کال دی کہ آپ نے پاکستان واپس آنا. اور خدا کا شکر ہے جیسے ہی میری سیمنری مکمل ہوئی تو میں پاکستان آئی. اور اگلا کام مجھے نہیں پتا تھا کہ خدا نے کیا رکھا ہے, اور وہ کام تھا جو کہ میرے فادر خدمت میں بھی تھے لیکن ان کا پروفیشن ٹیچنگ تھا. خدا نے مجھے یہ خیال دیا کہ کسی گاؤں میں بھی بچے پڑھ نہیں رہے, خاص طور پر ہمارے مسیحی بچے, اور بہت زیادہ لوگ جو تھے وہ دوسرے مذاہب کی طرف جا رہے تھے, خاندانوں کے خاندان. تو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ کم از کم ان بچوں پر کام کیا جائے. جو بڑے چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں, یہ بچے تو سفید کورا کاغذ ہیں, جو کچھ ہم ان کے اوپر لکھیں گے یہی نقش رہے گا. سو خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ گاؤں میں 10 بچوں سے ٹوٹے پھوٹے فرش اور ٹاٹ پر بیٹھ کر میں نے ایک چھوٹے سے اسکول کا آغاز کیا. ان کو کلام سکھاتی تھی, ان کو پڑھنا سکھاتی تھی تاکہ وہ خدا کا کلام خود پڑھ سکیں. اگر ایک شخص خود نہیں پڑھ سکتا وہ دوسروں کو کیسے سکھائے گا, اور اندھا اندھے کو کیا راہ دکھائے گا, خدا کے کلام میں لکھا ہے. تو خدا نے وہاں سے مجھے ایک خیال دیا کہ میں ان بچوں کے لیے کیوں نہ ایک بڑا اسکول کروں. بہت ڈسکریجمنٹ تھی. جو یوتھ بیٹھی ہے میں ان کے لیے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی شخص جو ینگ خدمت میں آتا ہے اس کے لیے
मैदान तो खुले होते हैं, लेकिन हौसला अफजाई नहीं, कोई भी आपकी बैक पे हाथ रखने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई आपके आइडियाज़ को अप्रिशिएट नहीं शायद करे। लेकिन खुदावंद अगर आपकी ज़िंदगी में है तो वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। खुदा का शुक्र है कि 10 बच्चों से आज हमारे पास 500 क्रिश्चियन बच्चा 3 स्कूलों में पढ़ रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ बच्चे दुनियावी तालीम हासिल नहीं कर रहे। जो नूर मिनिस्ट्रीज़ मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये नूर मिनिस्ट्रीज़ के गेस्ट हाउस के ब्रोशर हैं, तो मैं यहाँ पर छोड़ जाऊँगी, सॉरी, मुझे 10-11 बजे किसी और चर्च में करीब पहुँचना है, तो मैं यहाँ पर पीछे छोड़ जाऊँगी। आप ज़रूर ले सकते हैं, मैं फिर भी किसी वक्त आ सकती हूँ। आई एम ऑन जस्ट अ कॉल अवे, ठीक है। और ये हमारा नूर मिनिस्ट्रीज़ का ब्रोशर है, सॉरी, दोनों इंग्लिश में है, जो इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो ज़रूर लें। तो बस एंड करते हुए कि खुदा ने यहाँ तक पहुँचाया है, आगे आपका साथ चाहिए, आपकी दुआएं चाहिए, के लिए मौका। हम दुआ मांगे। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे बच्ची के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उसकी सारी मेहनत के लिए, उसके विजन के लिए, नूर मिनिस्ट्री के लिए, और उन बच्चों के लिए जो तालीम और इल्म हासिल कर रहे हैं, तो अपनी बच्ची की और उसकी स्टाफ की मदद और रहनुमाई कर, ताकि ये काम, ये खिदमतगुजारी का काम और ज़्यादा आगे बढ़े। हम सब मिलकर दुआ करते हैं तो अपनी बच्ची को अपनी जलाल के इस्तेमाल कर हमें इसकी मदद कीजिएगा। खुदा बाप, बेटे और दूसरे नाम से थैंक यू। प्रीचिंग और नर्सिंग, ये नर्सेज बैठी हुई हैं, सबका नाम नहीं मैं ले सकता, लेकिन जहाँ भी ये हैं ये खुदा उनके जलाल के लिए इस्तेमाल करती हैं। हम कभी जाएं, किसी को भेजें, बड़े अच्छे तरीके के साथ इस काम को आगे करती हैं। इसलिए ये मिनिस्ट्री यीशु मसीह की है जो साजिदा कर रही है, हम कर रहे हैं। सेंट पीटर स्कूल वारस रोड देखा कभी किसी ने? सेंट पीटर्स, वहाँ पे अगर आप बच्चों को भेजना चाहें आप ज़रूर लेके जाएं, हम उसको दाखिला देंगे, जहाँ तक हो सका उसकी मदद भी करेंगे ताकि बच्चे वहाँ पढ़ सकें। अब देखें, मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा है, 10 बच्चे से शुरू किया, 500 बच्चे हैं। बड़े स्कूलों में 1400 बच्चे थे, अब 500 रह गए। ठीक है, ये फ़र्क है विजन का। इसलिए आप लोगों ने हौसला अफजाई कर दी है अपने बच्चों की, ताकि ये पढ़ें। ये जो गलियों में घूमने वाले बच्चे हैं, इनका हक़ है कि वो तालीम और इल्म हासिल करें। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदा हम सबको दूसरों के लिए इस्तेमाल करें। ख़ास बातें जो मैंने लिखी थी अपने मैसेज से पहले, वो ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो हालात हैं बहुत बुरे हैं। गौर से सुने, अगर आप में से कोई पॉइंट लिखना चाहे तो लिख भी ले। हमारा मुआशरा जो है इस वक्त, पाकिस्तानी मुआशरा जहाँ मैं और आप रह रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, हमेशा याद रखें, कभी किसी से झगड़े या तलख कलामी को तूल ना दें। क्या ना करें जी? अगर आप सच्चे भी हैं ना तो माफ़ी मांग लें। आपकी इंसल्ट नहीं होगी, मैं मांग लेता हूँ। वो मेरा बेटा मुझसे कभी कभी नाराज़ होता है कि आप छोटी सी बात पे माफ़ी मांग लेते हैं लोगों से। भाई, झगड़े को तूल नहीं देना। आप चाहे हक पर भी हों, चाहे आपका कसूर ना भी हो, फिर भी उस माहौल में दलील ना दें, सफाई ना दें, अपनी इज़्ज़त बचाएं। सच्चाई ज़िंदगी को ख़तरे से डालने के बराबर है। आपने कहना मैं सच्चा हूँ, आप गलत हैं, मैं ठीक हूँ, आप गलत हैं, तकरार होगी, झगड़ा होगा, बात आगे बढ़ेगी। ज़िंदगी आपकी अहम है, अपनी ज़िंदगी को बचाएं। आज का दौर ख़तरनाक दौर है। कसूर किसका है, सही कौन है, गलत कौन है, छोड़ दें। सब बातें बेमानी है आज के दौर में। पाकिस्तान में सब बातें इस वक्त शर्म आती है बात करते हुए, ये बेमानी है, क्योंकि उस वक्त जब हालात ख़राब हो रहे हैं आपका कीमती होना ज़रूरी है। अगर कोई आपसे बदतमीज़ी करे, तुर्श लहजे में, सख्त लहजे में बात करे, हत्ता के गाली भी आपको दे दे, बस एक लफ्ज़ उससे कह दें, माफ़ी दे दें।
کہہ سکتے ہیں آپ؟ کہہ سکتے ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں. میں اپنے سے چھوٹے کو بھی کہہ لیتا ہوں راستے میں گزرتے گزرتے. مجھے پتہ ہوتا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے بندہ میرے سامنے، لیکن پھر بھی اس کے کہتے ہیں یار معافی دے دی جائے. آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں سے گرم خون ہے، یہ نہیں مانتے یہ بات. لیکن اگلی بات سن لیں، خاموشی سے چلے جائیں زیادہ اچھا. یاد رکھیں، آپ کے والدین کے لیے، آپ کی بیوی بچوں کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے آپ قیمتی ہیں. سچائی اس وقت قیمتی نہیں ہے کہ جی میں سچا تو غلط ہے، میں صحیح راستے پہ آ جا رہا تو غلط ہے. آپ اپنے والدین کے لیے امید ہے، اپنی بیوی بچوں کے لیے سہارا ہیں. آپ کی ایک چوٹ، آپ کا ایک نقصان ان سب کی دنیا برباد کر سکتا ہے. کن کی؟ گھر والوں کی دنیا برباد ہو جاتی ہے. کل میں ان خواتین کے آنسو، ان کی پکار، ان کا رونا سن رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، جن کے بچے کو، ابھی وہ بچے یہ 12-13 سال کا، پولیس میں مار کے مار دیا اس کو. صرف آگے سے سخت بولا ہوگا. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، منت کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے، تلخ کلامی نہ کریں. غلطی آپ کی نہیں بھی ہے، آپ سچے ہیں، پھر بھی سائڈ پہ ہو جائیں. آپ کی چوٹ آپ کے خاندان کے لیے بربادی کا سبب بن سکتی ہے. آپ کی زندگی کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں ہے. اس وقت یہاں لوگ غربت اور مسائل اور اپنے دکھوں اور ناکامیوں سے اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہیں، اتنے زیادہ دکھی ہیں کہ وہ مرنے مارنے پہ تولاتے ہیں. یہاں تک خدا نہ کرے اتنے لوگ مایوس ہو چکے ہیں کہ جیتے جاگتے انسان کو زندہ جلا دیتے ہیں. سنے آپ نے یہ واقعہ؟ مجھے روز واسطہ پڑتا ہے ایسی باتوں سے. میری بات مان لیں گے کہ نہیں؟ ہاتھ دکھائے نا ذرا نوجوان، سب لوگ مانیں گے میری بات یا نہیں؟ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ سے منت کر رہا ہوں، بڑی مہربانی، آپ کی بچت ہے اس میں، آپ کا فائدہ اس میں. لوگ مایوس ہو چکے ہیں، حالات بتا رہے ہیں کہ غصہ ابھی کم نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کو غلط تسلی نہیں دے رہا کہ آج جو تلخیاں لوگوں کی زندگیوں میں، رویوں میں، یہ غصہ ابھی کم نہیں ہونا، یہ بھی بڑھنا ہے. وجہ کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں اس لیے یہ بڑھے گا کیونکہ ہمارے معاشرے سے انصاف کا تو جنازہ ہی نکل گیا نا. انصاف ہے نہیں ہے ہمارے ملک میں، ہمارے گھروں میں نہیں، برادری میں نہیں، محلے میں نہیں ہے. جن لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں نا کہ یہ آگے بڑھے، وہی لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچ لیتے ہیں. آپ کے سامنے تعریف کرتے ہیں، وہ باہر جا کے آپ کی غیبت کرتے ہیں، آپ کی بدنامی کرتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کے معیار پہ نہیں اتر سکتے. اچھے دن وہاں آتے ہیں جہاں انصاف ہو، اور جہاں ناانصافی ہو وہاں برے دن نہیں آتے ہیں، سکون نہیں آتا. وہاں سکون کی بجائے عذاب آتے ہیں. کیا آتا ہے؟ ہمارے ملک میں عذاب ہے. جس دن جب گندم کی کٹائی ہوتی تھی نا، لوگ دعائیں کرتے تھے کہ بارش نہ ہو. ابھی پھر بارشیں آنی ہیں، گندم کی بھی کٹائی ہو رہی ہے. کال اسی لیے پڑھتے ہیں. اس لیے اپنے دامن کو اس گند سے خود ہی بچا لیں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے. ہمارے معاشرے میں جو گند ہے نا، آپ نے سائڈ سے ہو کے نکل جانا. اپنے دامن کو بچا لیں، اس گند سے بچا لیں. یہ میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں. اپنی زبان میں معافی کا لے الفاظ کہ بھائی جی میں معافی چاہتا ہوں، سوری. آپ کی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کی جان سب سے بڑی امانت ہے. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں نوجوانوں سے، آج کے کلام کے تعلق سے بھی، کہ آپ لوگ بڑے بھی، خواتین بھی، تلخ کلامی سے گریز کریں. حالات اتنے اچھے نہیں ہیں معاشرے میں. باہر جا کے آپ دیکھیں، لوگوں میں جا کے دیکھیں، لوگ تنگ ہیں، مشکل پریشانی ہے. کوئی لڑکی اسکوٹی چلاتی ہے، چرچ کے اندر بیٹھے، آپ کی خالہ کدھر گئی ہے بھائی؟ چرچ نہیں آئی، جرمانہ اس کو. موٹر سائیکل چلاتی ہے، ٹھیک ہے. کل ایک لڑکی اسکوٹی چلا کے جا رہی تھی، غور سے سنیں، پیچھے سے موٹر بائک والا آیا، اس نے اس کا موبائل چھینا ہے، وہ پیچھے گئی ہے، گر گئی ہے، چوٹیں لگی ہیں اس کو بیچاری کو. کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں
اگر ایسا وقت آ جائے نا آپ پہ، دفع کرے چیزوں کو، پکڑا دیں عزت کے ساتھ، چیزیں بن جائیں گی، زندگی نہیں آنی دوبارہ۔ میں آپ سب سے بیٹیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں خوش ہوتا ہوں جب کوئی قریب سے لڑکی گزرتی ہے نا اسکوٹی چلاتے ہوئے، عامر کی بیٹی بڑی چلاتی ہے موٹر سائیکل، میں خوش ہوتا ہوں اس کو دیکھ کے، اور بھی جو چلاتی کہ وہ اپنا کام خود کرتی ہیں، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کی عزت کریں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ اب یہ رسپیکٹ وہی کرے گا جس کی گھر سے تربیت ایسی ہوئی ہوئی ہے، ماں نے کہا، وہی لڑکا وہی جوان باہر جا کے عزت کرے گا، خواہ کوئی لڑکی ہو یا بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ میری دعا ہے کہ خدا ان ساری باتوں کو آپ سب کے ذہنوں میں نقش کر دے اور آپ اس پہ عمل کریں گے۔ آئیں ہم آج کے حوالے کی طرف جاتے ہیں۔ تھینک یو۔ آج کا حوالہ تاریخی حوالہ جو مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل سے پڑھا گیا۔ میں اب چونکہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا، وہ آخری بینچ پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ مجھے شاباش دیتے ہیں جس دن میں چھوٹا سا پیغام دیتا ہوں، تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے مجھے کوئی شاباش دے، ٹھیک ہے؟ تو میں چند باتیں کہوں گا، آپ اس حوالے میں سے صرف ایک آیت میں لینے لگا ہوں۔ نکالیں ذرا لوکا، مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، کلام مقدس میں اس حوالے میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، 25ویں آیت پڑھ رہا ہوں، آخری آیت جو پڑھی گئی۔ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ لوگ خدا ان کے گھر میں ہیں سننے کے لیے، غور سے سن لیں۔ اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ جو نبیوں کی باتیں سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، سست ہے۔ دانیل نے بھی پیشن گوئیاں کی، ہر روز ہر سنڈے آپ کلام بھی سنتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ تک پہنچتی ہیں، لیکن اعتقاد، بھروسہ، یقین، جب آپ چرچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت بڑا ہوتا ہے، گیٹ سے باہر جاتے ہیں تو اعتقاد ہی ختم ہو جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے ایمان میں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اس نے کہا، کس نے کہا؟ یسوع نے، اے نادانوں، نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ دکھ اٹھائے گا، سلیب دیا جائے گا، مرے گا، دفن ہوگا اور مردوں میں سے جی اٹھے گا؟ یہ اعتقاد ہے میرا اور آپ کا، اور آپ یہ اعتماد رکھیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی دکھ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غمگینی ہے، چھوڑ دیں پیچھے اس کو، آگے کو بڑھیں۔ کون کہتا ہے؟ پطرس کا خط نکالیں۔ 2 باتیں ہیں وہاں سے لوں گا کلام میں۔ پطرس رسول، خدا کا بندہ، آپ سے کہتا ہے، آج میں اس وقت خدا کا خادم ہوتے ہوئے سینٹ جانس چرچ کے لوگوں سے کہتا ہوں، جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی، جو لوگ اس عبادت کو سنتے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں، لکھا ہے جب کہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو، جو ایک کے کام کے موافق، جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے۔ خدا میرا اور آپ کا خدا بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، کسی کے وہ طرفدار نہیں ہے، اس کی نظر میں سب لوگ برابر ہیں۔ اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ میں آپ سب سے کہنا چاہ رہا ہوں، اس زمانے کو جس دور میں سے آپ گزر رہے ہیں، جہاں لوگ قبروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں، ایسے دور میں خدا کے خوف میں رہ کر زندگی گزاریں۔ پھر دیکھیں خدا آپ کی پریشانی کو، آپ کی غمگینی کو ختم کر دے گا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہوئی۔ جب میری اور آپ کی خلاصی، مجھے اور آپ کو جو نجات ملی ہے وہ یسوع مسیح کے قیمتی خون کے وسیلے سے ملی ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ نہ ڈریں انسانوں سے۔ اور لوگ کی کہیں گے تو کہتے رہیں، کیا ہوگا؟ لوگوں کو کہنے دیں، یہ ان کی عادت ہے، آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا۔
اس کے وسیلے سے خدا پر ایمان لائے ہو جس نے اس کو مردوں میں سے جلایا، زندہ کیا، جلال بخشا، تاکہ تمہارا ایمان اور امید خدا پر ہے۔ آپ اپنا ایمان اور امید دیکھیں، یہ حالات بہت خراب ہوئے ہیں، کچھ فیصلے ایسے آئے ہیں مائنارٹیز کے لیے، ہمارے لیے، لیکن ہم مایوس نہیں ہیں، ناامید نہیں ہیں۔ ہماری امید خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، متحد ہو کے آگے بڑھنا ہے، آپ کے تعاون سے بڑھنا ہے، تاکہ حالات درست ہو، چونکہ تم نے حق کی تابع داری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی۔ اس لیے دل و جان سے، دل اور جان سے آپس میں بہت محبت رکھو۔ آپس میں تو ہماری محبت نہیں ہے، اوپر اوپر سے تو اب کہہ دیتے ہیں، دل سے نہیں ہے۔ یہ میری درخواست ہے، اگر آپ نے کسی سے پیار، محبت، عزت، احترام کرنا تو دل سے کریں، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے، پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام اب تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا۔ خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہے گا۔ سو آپ سے درخواست کی جاتی ہے، آپ خدا کے کلام کو سامنے رکھیں۔ دنیا کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ ایک حوالہ اعمال رسولوں کے اعمال، ایک آیت، آخری بات، چونکہ پطرس ان سے اور ان کی اولاد سے ہم کلام تھا، ساری باتیں اس نے کی، اور آخر میں 40ویں آیت میں وہ کہتا ہے اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر، بہت سی باتیں، اس لفظ سے واقف ہے نا آپ، تو جتا ہی دینا ہے، ہوں پھر جتائی ہونا، وہی پرانی گل ہے۔ یہ جتا کر، پادری صاحب تبدیل ہو کے نئے چرچ میں گئے، پہلے سنڈے بھی وہی پیغام، دوسرے سنڈے بھی وہی پیغام، تیسرے سنڈے بھی وہی پیغام، اور وہ پیچھے بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے نا چارے چودھری، باہر نکل کر لگے پادری صاحب ہوں کلام بدل بھی دو، کہ اللہ تسی بھی روٹی پانی بدل دو، جس طرح کہ آپ میری خدمت کریں اسی طرح کی کرنی ہے نا۔ جتا کر کا مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں آپ کے دل پہ نقش ہو جائیں، تاکہ آپ کے اندر تبدیلی آ جائے، حقیقی تبدیلی آ جائے۔ جب آپ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں نا، تو آپ کو وہ کیچڑ سے نکال کے باہر لے آتا ہے۔ کہاں سے؟ دل سے نکال کے باہر لے آتا ہے جب آپ ایمان لاتے ہیں، پہلا سٹیپ۔ لیکن جب آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس کی تابعداری میں رہتے ہیں، اس کے فضل کے تحت چلتے ہیں، اس میں بڑھتے جاتے ہیں، کس طرح؟ تعلیم حاصل کرنے میں، رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے میں، اور دعا میں جب آپ اس میں سے آگے بڑھتے جاتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق اور واسطہ رکھتے ہیں، پھر پہلے تو اس نے آپ کو کیچڑ سے نکال کے یہاں رکھا، پھر وہ آپ کے اندر کا کیچڑ نکال دیتا ہے، دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے جب آپ اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کر لیتے ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے جتا کر وہ انہیں نصیحت کرتا تھا کہ اس ٹیڑھی قوم سے بچو۔ کون ہے ٹیڑھی قوم؟ کون ہے؟ کسی دوسرے کو وہ ٹیڑھی قوم ہے نا؟ ہم بھی خود بھی ٹیڑھے ہی ہیں، ہم نے بھی اپنے آپ کو درست کرنا ہے۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح ٹیڑھی اور ترچھی زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب توبہ کی بنیادی کر رہا تھا نا یوحنا، تو لوگ اس کے پاس آ رہے تھے، سشیل کو بڑی پسند ہے یہ آیت، یہ اپنے نوجوان ساتھیوں کو کبھی کبھی کہہ دیتا تھا، تو وہ خدا کا بندہ یوحنا ہوتا ہے، ان کو کیا کہتا ہے؟ اے سانپ کے بچوں، ان کو وہ کسی نے لوگ برا بنا دیتے، اے سانپ کے بچوں، ٹیڑھی چال جو چلتے ہوں، جن کا دماغ ہی ٹھیک نہیں ہے، جو سن کے سن ہو گئے ہو، اے ٹیڑھی ترچھی قوم، یسوع مسیح پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ۔ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ پس جن لوگوں نے اس کلام کو قبول کیا اور انہیں بپتسمہ لیا، اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان سے مل گئے، اور پھر وہ کیا کرتے تھے؟ تعلیم حاصل کرتے تھے۔
रसूलों से तालीम पाने, रफ़ाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहते थे। खुदा आप सबको भी ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत शुक्रिया। हम हमदो तारीफ़ करेंगे, खुदा उनका शुक्र अदा करेंगे, गीत गाएंगे। पहले आमतौर पे हम ज़बूर गाते हैं ना, 350 डोरी होर ना दे प्यार वाली छड़ दे ते यीशु तेनू बोलता। और इसी के दौरान अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा उनके हुजूर गुजारने। गीत नंबर 350 तसल्ली से निकालें, तसल्ली से गाएंगे, पूरा गीत गाएंगे। नजर साहब खुदावंद आसमानी बाप, अपना हाथ बड़ा हदिये की तकदीस कर जो तेरे लोगों ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दी है, इनकी तकदीस कर, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। खुदा बाप, बेटे रूल किसके नाम से जमायत बैठ जाए और यीशु अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। यीशु अपने रूल के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि ये हम सब के लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए
क्योंकि तेरे वसीले से आई यीशु एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी ईसाई होती है। आमीन। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, तेरी रूह के साथ भी रहे। अपने दिलाद में बाला पर लगाओ। हम इनको खुदा की तरफ लगाते हैं। अब अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुकद्दस बाप कादिर मुतअल और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायसिस ऑफ रायबेंड के लिए, बिशप ऑफ रायबेंड के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए, तमाम खादमों के लिए, तमाम लीडर्स के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क की हुकूमत के लिए, जो अमन और जंग बंदी के ताल्लुक से मुज़ाकरात हो रहे हैं उन्हें कामयाबी दे। जितने लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं उन्हें सलामती के साथ ला, ताकि दुनिया में अमन हो, सुलह हो, सलामती हो। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हम सब की दुआ को सुनता है। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जिली नाम की हम ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आए खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है। आने वाला पर होशना, वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर उठाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नजर और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, हम सब पर, आलमगीर कलीसिया पर, जो लोग बैरून मुल्क हैं, सब पर रहम कर, अपनी इस पूरी कलीसिया पर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जीवन का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतज़ार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो। हम सब मिलकर कहेंगे, मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गोनागोर बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक में नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु का गोश्त से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे, तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तुझे हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बड़े यीशु मसीह, जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, अपना इत्मीनान में बख्श। ऐ हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दे और कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए। हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून, उसका दस्तरखान आप सबके लिए तैयार है। यीशु मसीह का बदन जो ज़िंदगी की रोटी है और खुदावंद यीशु मसीह का खून जो अंगूर का हकीकी दरख्त है, आप सबको दावत देता है आप आएँ, शरीक हों, रूहानी ताज़गी पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून तेरे गुनाहों के लिए दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून तेरे गुनाहों के लिए दिया गया। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून खुश हो। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून का बदन और खून उसकी यादगारी में किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून उसकी यादगारी में किया कर।
इसलिए खुदा खार यीशु उसके मसीह का गाड़ी में बदन इस तरह खून ले और किया खुश हो। खुदा यीशु का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी इसलिए यादगारी खार में उसके किया गाड़ी कर। में इस तरह किया कर खुदा यीशु मसीह का खुदा बदन और यीशु खून ले का और खुश बदन हो। और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया गया खुदा यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी इसलिए खार यादगारी में उसके किया गाड़ी कर। में इस तरह किया कर खुदा खुदा यीशु मसीह यीशु का का बदन और बदन खून और ले और खून जो खुश हो। तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया गया खुदा यीशु मसीह का इसलिए बदन खार और उसके खून ले गाड़ी उसकी में इस तरह यादगारी में ही किया किया कर कर। खुदा यीशु का बदन और खून जो खुदा तेरे यीशु गुनाहों मसीह के का लिए बदन और इसलिए कर खून ले दिया उसकी गया यादगारी में ही किया कर। इसलिए खार उसके गाड़ी में इस खुदा तरह यीशु किया मसीह कर का बदन और खून ले और खुश हो। खुदा यीशु का बदन खुदा और यीशु खून जो मसीह का तेरे बदन और गुनाहों खून के ले लिए और खुश इसलिए हो। कर दिया गया खुदा खुदा यीशु मसीह यीशु का का बदन और बदन खून ले और और खून खुश जो हो। तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया गया खुदा इसलिए यीशु खार मसीह का उसके बदन और गाड़ी खून में ले इस और तरह खुश हो। किया कर खुदा खुदा यीशु यीशु का मसीह का बदन और बदन और खून जो खून ले तेरे उसकी गुनाहों के यादगारी लिए में ही इसलिए किया कर कर। दिया गया खुदा खुदा यीशु यीशु का मसीह का बदन और बदन और खून जो खून ले तेरे उसकी गुनाहों के यादगारी लिए में ही इसलिए किया कर कर। दिया गया खुदा इसलिए यीशु मसीह खार का उसके बदन और गाड़ी खून में ले इस और खुश तरह हो। किया कर खुदा यीशु का बदन और खून जो तेरे खुदा गुनाहों यीशु के लिए मसीह का इसलिए बदन और कर खून ले दिया गया उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदा यीशु का खुदा बदन और यीशु खून का जो बदन तेरे और खून गुनाहों ले के और लिए खुश हो। इसलिए कर दिया गया खुदा इसलिए यीशु खार का उसके बदन और गाड़ी खून में ले इस और तरह खुश किया हो। कर खुदा खुदा यीशु का यीशु बदन का और खून बदन ले और और खून खुश जो हो। तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया गया खुदा यीशु का बदन और खून ले खुदा उसकी यीशु यादगारी का में ही बदन किया और खून कर। जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया गया खुदा यीशु का बदन और खून इसलिए ले और खार खुश हो। उसके गाड़ी में इस तरह किया कर खुदा यीशु का बदन और खून ले और खुश खुदा हो। यीशु का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर खुदा दिया गया यीशु का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया खुदा कर। यीशु का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए खुदा कर दिया यीशु गया का बदन और खून ले और खुश हो। खुदा यीशु का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए खुदा कर दिया यीशु गया का बदन और खून ले उसकी यादगारी में इसलिए ही खार किया कर। उसके गाड़ी में इस तरह किया कर खुदा यीशु का बदन और खुदा खून ले यीशु उसकी का यादगारी में बदन ही और किया खून जो कर। तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया गया खुदा यीशु का बदन इसलिए और खार खून ले और उसके खुश गाड़ी हो। में इस तरह किया कर खुदा यीशु का बदन और खुदा खून जो यीशु तेरे का बदन गुनाहों और के लिए खून ले और इसलिए खुश कर हो। दिया गया इसलिए खार उसके गाड़ी में इस तरह किया कर खुदा यीशु का बदन और खून ले और खुश हो। खुदा यीशु का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा इसलिए कर यीशु दिया का गया बदन और इसलिए खून खार ले उसकी खुश यादगारी में ही किया कर। खुदा यीशु खुदा का बदन और यीशु का खून जो बदन तेरे और खून ले गुनाहों उसकी के लिए यादगारी इसलिए में कर ही दिया किया गया कर। इसलिए खार उसके गाड़ी में इस तरह किया कर खुदा यीशु का बदन और खून ले और खुश हो। खुदा यीशु का बदन और खून जो तेरे खुदा गुनाहों के लिए यीशु का इसलिए बदन और कर खून दिया ले गया उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदा खुदा यीशु यीशु का का बदन बदन और और खून खून जो ले तेरे उसकी गुनाहों यादगारी के में लिए ही इसलिए किया कर कर। दिया गया इसलिए खार उसके गाड़ी में इस खुदा तरह किया यीशु का कर बदन और खून ले और खुश हो। खुदा यीशु का बदन और खून जो खुदा तेरे यीशु गुनाहों का के बदन लिए और इसलिए खून ले कर और दिया खुश गया हो। इसलिए खार उसके गाड़ी में खुदा इस तरह यीशु किया का कर बदन और खून ले उसकी यादगारी में खुदा ही किया यीशु कर। का बदन और खून खुदा जो यीशु तेरे का गुनाहों बदन और के लिए खून ले इसलिए उसकी कर दिया यादगारी में गया ही किया कर। खुदा यीशु इसलिए का खार बदन और उसके खून ले गाड़ी उसकी में इस तरह यादगारी में किया ही कर किया कर। खुदा खुदा यीशु यीशु का का बदन बदन और और खून खून जो ले तेरे उसकी गुनाहों यादगारी के में लिए ही इसलिए किया कर कर। दिया गया खुदा यीशु खुदा का यीशु बदन और का खून ले बदन और उसकी खून जो तेरे यादगारी में ही गुनाहों किया के लिए कर। इसलिए कर दिया गया खुदा यीशु का इसलिए बदन और खार खून ले उसके और खुश गाड़ी हो। में इस तरह किया कर खुदा यीशु का बदन और खुदा खून ले और खुश यीशु हो। का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया खुदा गया यीशु का बदन और खून ले और खुश हो। इसलिए खार उसके गाड़ी में इस तरह किया खुदा कर यीशु का बदन और खून ले उसकी खुदा यादगारी में ही यीशु किया का कर। बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए खुदा कर यीशु दिया का गया बदन और खून ले और खुश हो। इसलिए खार उसके गाड़ी में इस तरह किया कर खुदा यीशु का बदन और खून ले उसकी खुदा यादगारी यीशु में का ही किया बदन और कर। खून जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया गया खुदा यीशु का बदन और खून ले उसकी इसलिए खार यादगारी में उसके ही किया गाड़ी में कर। इस तरह किया कर खुदा यीशु खुदा का यीशु बदन और का खून ले बदन और उसकी खून जो यादगारी में तेरे ही किया गुनाहों के कर। लिए इसलिए कर दिया गया खुदा यीशु का इसलिए बदन और खार खून ले उसके और खुश गाड़ी हो। में इस तरह किया कर खुदा यीशु का बदन खुदा और खून ले यीशु और का खुश हो। बदन और खून खुदा यीशु का जो बदन तेरे और खून गुनाहों ले के और लिए खुश हो। इसलिए कर दिया गया इसलिए खार खुश हो खुदा यीशु का बदन और खुदा खून ले उसकी यीशु का यादगारी बदन में और ही किया खून जो कर। तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया खुदा गया यीशु का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही इसलिए किया खार कर। उसके गाड़ी में इस तरह किया कर खुदा यीशु खुदा का बदन और यीशु खून का ले और बदन और खुश हो। खून जो तेरे खुदा गुनाहों यीशु के का लिए बदन इसलिए और कर खून ले दिया उसकी गया यादगारी में ही किया कर। खुदा यीशु का बदन और खुदा खून जो तेरे यीशु का गुनाहों बदन और के लिए खून ले इसलिए और खुश कर हो। दिया गया इसलिए खार उसके खुदा गाड़ी में इस तरह यीशु का किया बदन कर और खून ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदा यीशु का बदन और खून खुदा यीशु का बदन और खून ले और खुश हो। जो तेरे गुनाहों के लिए इसलिए कर दिया गया खुदा यीशु का बदन और खून ले उसकी यादगारी में ही किया इसलिए कर। खार उसके गाड़ी में इस तरह किया कर खुदा यीशु का बदन और खून ले और खुश हो। खुदा यीशु का बदन और खून खुदा यीशु जो का तेरे बदन और खून गुनाहों ले के और लिए खुश हो। इसलिए कर दिया गया खुदा यीशु इसलिए का खार बदन और उसके खून ले गाड़ी उसकी में इस तरह यादगारी में ही किया किया कर कर। खुदा खुदा यीशु यीशु का का बदन बदन और और खून खून ले और खुश हो।
जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा स्लेब पर दिया गया, फोन ले उसकी यादगारी में ही किया कर। इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु का बदन और फोन ले खून उसकी यादगारी में ही किया कर। जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, यादगारी में ही किया कर। इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु का बदन और फोन ले और खुश हो। खुदा यीशु का बदन और खून खुदा यीशु का बदन और फोन ले और खुश जो हो। तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदा यीशु का बदन और फोन ले और उसकी याद में तेरे ही किया गुनाहों के कर। लिए स्लेब पर दिया गया, इसे लिखा खुदा यीशु का बदन और फोन ले उसकी यादगारी में ही किया कर। खुदा यीशु का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब खुदा पर दिया यीशु का गया, बदन और फोन ले उसकी यादगारी में ही खुदा किया यीशु कर। का बदन और खून जो खुदा तेरे गुनाहों यीशु का के बदन लिए और स्लेब फोन पर ले दिया और गया, खुश हो। इसे लिखा और उसकी खुदा यादगारी में यीशु इस का तरह बदन और किया फोन ले कर। और खुश हो। खुदा यीशु का बदन और खून खुदा यीशु का बदन और फोन ले और खुश हो। जो तेरे गुनाहों के लिए स्लेब पर दिया गया, खुदा यीशु का बदन और फोन ले उसकी इसे यादगारी लिखा और में ही उसकी किया कर। यादगारी में इस तरह किया कर। खुदा यीशु का बदन और फोन खुदा ले और खुश यीशु हो। का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदा स्लेब पर यीशु दिया का गया, बदन और फोन ले और खुश हो। खुदा यीशु का बदन खुदा और खून यीशु जो का तेरे बदन और फोन गुनाहों ले के लिए उसकी स्लेब यादगारी पर में दिया ही गया, किया कर। इसे लिखा और उसकी खुदा यादगारी में यीशु इस का तरह बदन और किया फोन ले कर। और खुश हो।
खुदावंद यीशु मसीह का खुदावंद बदन और यीशु मसीह का खून बदन और खून ले उसकी यादगारी में यही किया कर जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया खुदावंद गया। यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदावंद यीशु सलीब पर मसीह दिया का गया, बदन और खून ले और खुश हो इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और इसे खून लिखा ले और और उसकी खुश हो यादगारी में इस तरह किया कर। कोई खुदावंद बात यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब खुदावंद पर यीशु दिया मसीह का गया, बदन और खून ले और खुश हो खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी इसे यादगारी लिखा और में उसकी किया कर यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का खुदावंद बदन और यीशु खून मसीह ले का और बदन खुश और हो खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून खुदावंद ले और यीशु खुश मसीह हो का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर खुदावंद दिया यीशु मसीह का गया, बदन और खून ले उसकी यादगारी में इसे यही किया लिखा और कर उसकी यादगारी में इस तरह किया खुदावंद कर। यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुश हो खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले उसकी जो तेरे यादगारी में गुनाहों किया के लिए कर सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे खुदावंद गुनाहों यीशु के लिए मसीह का सलीब बदन और पर खून दिया ले और गया, खुश हो खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खुदावंद खून यीशु जो मसीह का तेरे बदन और गुनाहों खून के ले लिए उसकी सलीब पर यादगारी में दिया गया, यही किया कर खुदावंद यीशु इसे मसीह का लिखा और बदन और उसकी खून ले उसकी यादगारी में इस यादगारी तरह में यही किया किया कर। कर खुदावंद यीशु खुदावंद मसीह यीशु का मसीह बदन का और बदन और खून जो खून तेरे ले उसकी गुनाहों के यादगारी लिए में यही सलीब किया पर कर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून ले और खुदावंद खुश यीशु हो मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए खुदावंद सलीब यीशु पर मसीह दिया का गया, बदन और खून ले और खुश हो इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु मसीह का खुदावंद बदन और यीशु खून मसीह ले का और खुश बदन हो और खून जो तेरे गुनाहों खुदावंद के यीशु लिए मसीह का सलीब पर बदन और दिया खून ले गया, उसकी यादगारी में यही किया कर खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। खुदावंद यीशु खुदावंद मसीह का यीशु बदन और खून ले और खून जो खुश हो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून जो तेरे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया, इसे लिखा और उसकी यादगारी में इस तरह किया कर। अगर आप में से कोई रह गया हो, शायरबानी में शरीक होना चाहे, अभी मौका है, आप आ सकते हैं। नहीं आ सकते, अपना हाथ दिखाएं, हम आपकी खिदमत के लिए आपके पास आ सकते हैं। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पास आकर में शरीक हुए हैं, तो अब हम शुक्रगुजारी करें। कादिर खुदा हमारे आसमानी अपनी बाप, बाप तो जिसने हमें अपने तकलीफ भेजे, यीशु मसीह हमारे खुदा ने बतौर अपने फ़र्ज़ों कबूल कर लिया है और हमें उसके नहायत में नियमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेहत किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से वाकिफ़ हैं, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुज़ूर नज़र गुज़राते हैं, ताकि पाक और ज़िंदा कुर्बानी जो हमारे मकबूल इबादत है हमें फजल बख्श ताकि हम शक्ल न बने बल्कि यकीन हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूँ नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जहान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरे आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाएं हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल अब्बार जीता और सल्तनत करता है आमीन। हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल अब्बार हमारे खुदा की हो आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ व कारब, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, जंगज़दा इलाकों के साथ, बेरोज़गार लोगों के साथ, बे औलाद लोगों के साथ, बीमारों के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।